لیفٹیننٹ جنرل محمد عاصم ملک ISI کے DG تعینات کر دیے گئے۔ 30 سپتمبر کو اپنی ذمہ داریاں سنبھالیں گے۔ لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک ایڈجوائنٹ جنرل کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ بلوچستان میں انفینٹری ڈویژن اور وزیرستان میں انفینٹری بریگیڈ کمانڈ کر چکے ہیں۔ کورس میں اعزازی شمشیر بھی حاصل کر چکے ہیں۔ چیف انسٹرکٹر NDU اور انسٹرکٹر کمانڈ اینڈ اسٹاف کالج کوئٹہ بھی تعینات رہ چکے۔ لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک فورٹ لیون ورتھ اور رائل کالج آف ڈیفنس اسٹڈیز کے گریجویٹ بھی ہیں۔ سپریم کورٹ نے مخصوص نشستوں سے متعلق 70 صفحات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا۔ الیکشن کمیشن کا 1 مارچ کا فیصلہ ان سے متصادم ہے۔ الیکشن کمیشن کے 1 مارچ کے فیصلے کی کوئی قانونی حیثیت نہیں۔ الیکشن میں سب سے بڑا اسٹیک عوام کا ہوتا ہے۔ PTI قومی اسمبلی میں مخصوص نشستوں کی حقدار قرار۔ پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار۔ PTI ایک سیاسی جماعت ہے۔ الیکشن کمیشن فروری 2024 میں اپنا کردار ادا کرنے میں ناکام رہا۔ فیصلے میں کہا گیا آئین اور جمہوریت کی بنیاد عوام کی رائے اور مرضی ہے۔ انتخابی تنازع بنیادی طور پر سول تنازعات سے مختلف ہوتا ہے۔ PTI کے مطابق ووٹرز نے ان کے امیدوار ہونے کی وجہ سے ووٹ دیا۔ یہ سمجھنے کی بہت کوشش کی اتنے آزاد امیدوار کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اس سوال کا کوئی تسلی بخش جواب نہیں دیا گیا۔ سپریم کورٹ کے تفصیلی فیصلے میں 8 ججز نے 2 ججز کے اختلافی نوٹ پر تحفظات کا اظہار کر دیا۔ 8 ججز نے 2 ججز کے اپنے 12 جولائی کے فیصلے کو غیر آئینی قرار دینے کے ریمارکس غیر شائستہ قرار دیے اور کہا کہ جسٹس امین الدین اور جسٹس نعیم اختر افغان کا عمل سپریم کورٹ کے ججز کے منصب کے منافی ہے۔ تفصیلی فیصلے میں 2 ججز کے تحفظات کے حوالے سے بتایا گیا جس انداز میں ججز نے اکثریتی فیصلے پر تحفظات کا اظہار کیا وہ مناسب نہیں ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ 2 ججز اپنی حدود سے تجاوز کر گئے۔ 2 ججز نے الیکشن کمیشن کو اکثریتی حکم کی تعمیل نہ کرنے کا حکم دیا جو کہ اس عدالت کے 13 رکنی فل کورٹ بینچ کا فیصلہ تھا۔ ایسے مشاہدات انصاف کے اعلیٰ ترین ادارے کی سالمیت کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ عمل عدالتی کارروائی میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش ہے۔ مخصوص نشستوں سے متعلق فیصلہ جسٹس منصور علی شاہ نے تحریر کیا۔ مخصوص نشستوں سے متعلق اکثریتی فیصلہ اردو زبان میں بھی جاری کرنے کا حکم۔ احکامات کے مطابق اردو ترجمے کو کیس ریکارڈ کا حصہ بنایا جائے اور ویب سائٹ پر بھی اپلوڈ کیا جائے۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا اجلاس شام 4 بجے ہوگا۔ ذرائع کے مطابق ایجنڈے میں آرٹیکل 63A نظر ثانی کو سماعت کے لیے مقرر کرنا شامل ہے۔ اکثریتی فیصلے میں کہا گیا تھا کہ پارٹی پالیسی کے خلاف ڈالا گیا ووٹ شمار نہیں ہوگا۔ اجلاس میں مبینہ آڈیو لیکس کیس بھی سماعت کے لیے مقرر کرنا شامل ہے۔ مخصوص نشستوں کے معاملے پر الیکشن کمیشن کا اجلاس آج پھر ہوگا۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے آج حتمی فیصلہ کیے جانے کا امکان۔ مخصوص نشستوں پر سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد پر غور ہوگا۔ سپریم کورٹ نے مخصوص نشستیں PTI کو دینے کا حکم دیا تھا۔ گزشتہ اجلاسوں میں الیکشن کمیشن کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکا۔ الیکشن کمیشن کے ممبران، حکام اور قانونی ٹیم شریک ہوگی۔ سندھ اسمبلی میں انسداد منشیات بل 2024 متفقہ طور پر منظور کر لیا گیا۔ بل وزیر ایکسائز شرجیل میمن نے پیش کیا تھا۔ کہتے ہیں کہ منشیات کو اگر نہیں روکا گیا تو یہ کسی کو بھی لپیٹ میں لے سکتی ہے۔ جہاد کر کے منشیات کو ختم کرنا ہے۔ قانون پر عمل درآمد کرنا ہم سب کا فرض ہے۔ شہید DSP CTD علی رضا کے قتل میں ملوث ملزموں کے خاکے جاری۔ خاکے چشمدید گواہ CCTV کیمروں کی مدد سے تیار کیے گئے۔ CTD 2.5 ماہ گزرنے کے باوجود DSP CTD علی رضا کے قاتلوں کی گرفتاری میں ناکام۔ ملزموں کی گرفتاری کے لیے عوام سے مدد کی اپیل کر دی۔ ملزمان کی شناخت اور گرفتاری میں مدد فراہم کرنے والے کو حکومت سندھ نے انعامی رقم کا اعلان کیا تھا۔ ملزمان کی گرفتاری میں مدد دینے والے کا نام ذیقہ راز میں رکھا جائے گا۔
कराची के इलाके किमाड़ी में पुलिस की कार्रवाई। शेरशाह पराचा चौक पर ट्रैफिक पुलिस एहलकार समेत 2 अफराद को शहीद करने वाले 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। गुज़िश्ता रोज़ मुलजिमान की CCTV तस्वीर मंजर-ए-आम पर आई थीं। सरकारी मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया गया था। पेशावर के इलाके दानिशाबाद में ANF की कार्रवाई। कीमियाई मंशियात और नशावर गोलियां बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा। टैबलेट, पेचिंग मशीन्स, ड्रायर, मिक्सर्स और स्केल्स जब्त कर लिए गए। फैक्ट्री सील, 2 मुलजिमान गिरफ्तार। तर्जुमान ANF के मुताबिक मुलजिम हॉस्टल और तालीमी इदारों में तलबा को मंशियात सप्लाई किया करते थे। मीरपुर खास में उलमा और ताजरों की अपील पर शटर डाउन हड़ताल। कारोबारी मराकज़ बंद, अवाम सख्त परेशान। उलमा और ताजरों का सूबाई वजीर के बयानात पर इस्तीफे का मुतालबा। जब भी मुल्क में इस्तेहकाम आ रहा होता है, इंतशार शुरू हो जाता है। नून लीग के रहनुमा बैरिस्टर दानियाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी तौर पर यहूदी लॉबी कमज़ोर करने में मसरूफ़ है। इसराइली आर्टिकल में कहा गया कि बानी PTI इसराइल का एजेंडा बेहतर तौर पर आगे ले जा सकते हैं। इसराइली अखबार के आर्टिकल की कड़ियाँ पाकिस्तान को कमज़ोर और गैर मुस्तहकम करने की साजिश से मिलती हैं। पार्टी हैसियत न रखने वालों को सीटें नहीं मिलती। इनकी बुनियाद को ठीक करना सबकी जिम्मेदारी है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं कि जब एक्ट पास नहीं हुआ था तब सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर ने PTI के लिए एक हक पैदा किया था। पहले एक हलफनामा दिया हुआ है, फिर एक नया हलफनामा सामने आ गया। ये मुनासिब नहीं। पार्लियामेंट ने कानून पास करा के इस चीज़ को वाज़े कर दिया। PTI सबसे बड़ी जमात है, इसमें कोई दो राय नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा वकला इस वक्त आईनी तरामीम के खिलाफ मुत्तहिद है। आईनी तरामीम पाकिस्तान के आइन का बुनियादी ढांचा तबाह करने की कोशिश है। ये स्कीम कामयाब हुई तो आईनी पाकिस्तान को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचेगा। वकला और अपोजिशन पार्टीज को इस मामले में इकट्ठे होकर आगे बढ़ना होगा। तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट ऑर्डिनेंस के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट से रजू कर लिया। दरख्वास्त में वफाक सेक्रेटरी काबीना और सेक्रेटरी पार्लिमानी उमूर को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की मौजूदगी में ऑर्डिनेंस के ज़रिए तरमीम नहीं की जा सकती। हुकूमत की मुदाखलत से अदलिया की आज़ादी ख़त्म हो जाएगी। आइन की आज़ादी को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। कौम अपनी आज़ादी के लिए खड़ी हो चुकी है। तरमीमी ऑर्डिनेंस पाकिस्तान की बका के खिलाफ लाया जा रहा है। सिंध हाई कोर्ट के बाहर हलीम आदिल शेख की मीडिया से गुफ्तगू। कहा साबित हो गया पीपल्स पार्टी अब भुट्टो की नहीं ज़ियाउल हक की बाक़यात है। तमाम चेहरे बेनकाब हो रहे हैं। PTI सीसा पलाई दीवार बंद कर खड़ी हो गई है। अली अमीन गंडापुर की घटिया और गंदी जुबान का इलाज हमने कर दिया है। मेरी वीडियो का इल्ज़ाम भी मरीम नवाज पर लगा दिया गया। पंजाब की वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू। कहती हैं कि सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल पर कार्रवाई होनी चाहिए। आज फिर अगली तारीख मिली है। DG FIA मौजूद नहीं थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सालगिरह पर चीनी सदर का तहनीयती खत। सालगिरह की मुबारकबाद और नेक तमन्नाओं का इजहार। सदर ने खत में कहा कि पाकिस्तान और चीन गठन और अच्छे वक्तों के स्ट्रेटेजिक ताउन के शराकतदार हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में समिट ऑफ फ्यूचर कॉन्फ्रेंस पिक्ट फॉर द फ्यूचर की करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर ली गई। जनूबी अफ्रीका ने सलामती कौंसिल में इस्लाहात का मुतालबा कर दिया। अफ्रीकी सदर ने कहा कि आलमी अमन का मामला चंद ममालिक के हाथ में देना ठीक नहीं है। मौजूदा निज़ाम गैर मुनसिफाना और गैर पायदार है। ब्राज़ील के सदर का मजबूत क्लाइमेट एक्शन पर जोर।
हमें तरक्की पसंद, जमहूरियत पसंद और पुरअमन कौम की तामीर के लिए मुश्तरका कोशिशें जारी रखना होंगी। पश्तून सकाफती दिन के हवाले से बिलावल भुट्टो जरदारी का पैगाम। कहा, इख्तिलाफात को तस्लीम करके ही हम एक मजबूत और मुत्तहिद पाकिस्तान की बुनियाद रख सकते हैं। अच्छी गवर्नेंस के लिए टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाया जाए। वज़ीर आला पंजाब की अवामी जमहूरिया चीन के 75वें कौमी दिन की तकरीब में शिरकत। चीनी कौंसल जनरल से मुलाकात की, कौमी दिन पर मुबारकबाद पेश की। मरीम नवाज कहती हैं कि पाकिस्तान और चीन की दोस्ती समंदरों से गहरी और पहाड़ों जैसी मजबूत है। चीन की कामयाबियां हमारे लिए भी हौसला अफजा हैं। पाकिस्तान में बिजली का बहरान है, मौसम बेहतर हो गया, इसके बावजूद यूनिट कम नहीं हुए। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज तैमूर रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, महंगे बिजली और बढ़ते बिलों से अवाम नाला है। लोड शेडिंग के खिलाफ अब अवाम एहतजाज के लिए तैयार हो रही है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। घरेलू और कारोबारी उमूर ठप हो गए। अक्सर इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 14 घंटे से भी बढ़ गया। न्यू कराची, सुरजानी टाउन, PIB, महमूदाबाद, नॉर्थ कराची समेत कोरंगी, लांडी और दीगर इलाकों के मकीन तवील लोड शेडिंग से तंग आ गए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान मंदी। 100 इंडेक्स में 370 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 81,170 पॉइंट्स पर आ गया। 127 कंपनीज के शेयर्स में इजाफा, 217 कंपनीज के शेयर्स में कमी और 18 कंपनीज के शेयर्स में इस्तेहकाम रहा। सिंध हाई कोर्ट में 2 साल से लापता 17 साल लड़की समेत 10 से ज़ायद लापता अफराद की बाजियाबी से मुताल्लिक दरख्वास्तों की समाअत। मुतअद्दिद लापता अफराद के अहल खाना अदालत में पेश न हो सके। अदालत का बाजियाबी के लिए कार्रवाई जारी रखने का हुक्म। GITs और सूबाई टास्क फोर्सेस के इजलास की हिदायत। समाअत 4 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी गई। सिंध हाई कोर्ट में SBCA के रूल्स मुरतब न करने के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत। सरकारी वकील की वक्त तलब करने की इस्तदा। कहा, रूल्स का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है, मुकम्मल करने के लिए वक्त दरकार है। जब रूल्स मौजूद नहीं तो अमल दरामद कैसे हो रहा है? अदालत का इस्तफसार। रिमार्क्स दिए, हम समझना चाह रहे हैं कि रूल्स और रेगुलेशन कैसे काम करते हैं। समाअत 1 अक्टूबर तक मुलतवी। इसराइली फौज पर जंगी जुनून तारी। लिबनान के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बमबारी। एक शहरी जाँ बहक, मुतादिद जख्मी हो गए। इत्तलात के मुताबिक गजा जंग शुरू होने के बाद सबसे बड़ा फ़िज़ाई हमला था। इसराइली फौज का हिज़्बुल्लाह के मिसाइल लॉन्चर्स को निशाना बनाने का दावा। कराची के मकामी होटल में दुबई एक्सपो का इनेकाद। दुबई से रियल एस्टेट से वाबस्ता बिल्डर्स की बड़ी तादाद की शिरकत। दुबई एक्सपो का मकसद पाकिस्तानियों के लिए दुबई में बेहतरीन कारोबार और प्रॉपर्टी के मौक़ों से आगाही फराहम करना था।